Good evening, everyone. Thank you for joining me in Cancer Healing Circle Talks. It's my pleasure and honor to host this space with all of you. हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है आज उमा जी. Before we begin, I would like to read the guidelines. Healing circles are safe havens. They are built on the foundation of kindness and respect. We all participants agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in this circle within us, and we trust each one of us has guidance we need within us and rely on the power of silence to access it. Thank you. And today we have Uma ji with us. She is a stage 3 ovarian cancer survivor based out of Pune. She was diagnosed with cancer during the pandemic and got struck with corona twice. उनको pandemic के दौरान cancer diagnose हुआ था, ovarian cancer, जो कि stage 3 था, और उनको 2 बार corona भी हुआ इस दौरान. She calls her experience with cancer a blessing, as it helped her to become a better version of herself and also to see the world with a new light. मैंने काफ़ी सारे सर्वाइवर्स के साथ में ऐसा देखा है कि जब वो इस जर्नी से निकलते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं तो उनका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है. एक बहुत ही एक्सपीरियंशियल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जिससे कि बिकॉज वी लुक एट द लाइफ फ्रॉम अ न्यू डायमेंशन, न्यू पर्सपेक्टिव, एंड सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज नाउ वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग small things, and also we start appreciating relations, and प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है कि क्या एक्चुअल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आफ्टर गोइंग थ्रू सच अ डीप एक्सपीरियंस. शी कॉल्स हर एक्सपीरियंस विद कैंसर अ ब्लेसिंग, and going through a lot during the journey and defeating cancer with all her strength and self affirmation. This thoughtful soul want to pass the torch to young ovarian cancer patients. That's really nice of you. She believes that cancer should not become a barrier to experiencing the gift of womanhood of giving birth. That's very true, because मैंने भी काफ़ी ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स के साथ में, यंग गर्ल्स के साथ में देखा है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी आते हैं अपनी लाइफ का एक नेक्स्ट फेज शुरू करने के लिए, एंड काफ़ी क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, और उनकी मैरिज में भी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो बहुत ही अच्छा है कि आप इसके बारे में भी आज बात करेंगे, एंड आई एम श्योर दैट काफ़ी लोगों को, गर्ल्स को इससे बेनिफिट मिलेगा. सो थैंक यू सो मच उमा जी फॉर ज्वाइनिंग विद अस. And I have with me my co-host Justina. So I'll request Justina to take it forward from here. Thank you. Yes, ma'am. Hello, उमा जी. मैं आज आपको फिर से वेलकम करना चाहती हूँ जेनॉन को और लव यूज कैंसर में. तो आप बता सकते हैं, आप खुद को पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कैंसर जर्नी आपका कैसे शुरू हुआ. Okay, thank you very much, Justina, and thank you, ma'am. It's an honor to be part of your group and community today. And a very good evening to all the participants of this program. Thank you. You've been very kind to take time out of your schedule and logging in for this session. Now, Justina has been, an excellent interviewer. She comes with very mindful and very intrigued questions. Okay, so to introduce myself, I am currently based in Pune. Ma'am has already mentioned my name to all of you, and so I'm associated with the corporate. I work for Cognizant, and I am a professional HR. So I've been part of corporate for the past 15 years now, and was going through that journey of how a corporate journey is, the roller coaster ride. And then all of a sudden I was struck with a bolt from the blue, very much caught me very much unaware of, because I was very painstakingly but carrying on with my duties, from yes ma'am, you want to say something? Yeah, Uma ji, I was just saying कि हम लोग अगर सर्कल को हिंदी में भी रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा. Okay, दोनों मिक्स कर सकते हैं, ज्यादा हिंदी में बात. जी ओके. तो मैं ये बोलना चाहती थी कि बहुत ही आम तरीके की जैसे सबकी जिंदगी होती है, दैट वाज हाउ आई वाज, मेरी भी जिंदगी वैसे ही थी. बट अचानक जब मुझे पता चला कि मैं एक 3rd स्टेज कैंसर कैरी कर रही हूँ, तो बहुत ही एक धक्का लगा, सिर्फ मुझे नहीं, मेरी पूरी फैमिली को.
और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। हाँ, और राधा दोस्ती शुरू हुई बोल सकते हैं इस डिजीज के साथ। और जितनी अच्छी तरीके से मैंने इसको समझा है, और कोशिश यही रही है कि जो जो मुझे बोला गया, मेरे फिजिशियंस, मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट जो जो मेरे को बोले हैं, आई ट्राइड टू फॉलो इट। हाँ, और उसके साथ साथ एक विश्वास था, एक होप थी कि डेफिनेटली आई विल कम आउट ऑफ इट। और फिर डेफिनेटली with time I was told that yes, now you are cancer free. मेरी जब almost close to 23 rounds of chemotherapies I had to undergo, और एक सर्जरी थी जहाँ पे ऑर्गन, जो ऑर्गन में हुआ था, दैट इज एन ओवरी, उसको रिमूव किया गया, यूट्रस को रिमूव किया गया, और ऑलमोस्ट क्लोज टू 33 निम्फ नोड्स रिमूव किए गए, क्योंकि मेरा जस्ट मेटास्टेटिस स्टार्ट हुआ ही था जब डायग्नोस हुआ। तो उस कंडीशन में हुई थी, एंड देन ऑब्वियसली काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे, बट उसको लेके ही मैंने चलना सीखा, एंड हियर आई एम। जी, तो मैम आप बता सकते हैं कि आपका जो पहले का सिम्टम्स था और ये कैसे डायग्नोस हुआ था शुरुआत में? ओके, हाँ। बेसिकली मेरी कुछ ऐसे सिम्टम्स थी नहीं, मतलब मैंने कभी क्योंकि ओवरी कैंसर है तो मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी मेरे को नजर नहीं आया, जिसके लिए मेरे को कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत महसूस हुई। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, या फिर मैं जो एक 9 सेंटीमीटर का जो ट्यूमर कैरी कर रही थी उसके लिए भी मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। मेरे को पेट में दर्द या कहीं पे भी कुछ भी दर्द, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपना जो रोजाना काम करती थी वही काम कर रही थी। बट एक दिन क्या हुआ, मेरे को अचानक एक राइट शोल्डर पे थोड़ी सी स्प्रेन आई, बिकॉज ऑफ मैं फोन पे बात कर रही थी, तो शायद मेरा पोस्चर गलत था या मैं सही तरीके से फोन को पकड़ा नहीं था, और लंबी तक मैंने ऑलमोस्ट क्लोज टू 40-45 मिनट्स की बात हो रही थी मेरी। तो जहाँ पे मेरे को यहाँ पे ना पेन महसूस हुआ, तो वो पेन के बाद वो मैंने इनिशियली जैसे हम लोग करते हैं, कुछ भी हुआ तो घर पे जो चीज रहती है, स्प्रे लगाया, बाम लगाया, लेकिन फिर भी वो पेन गया नहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि देखो ऐसा पेन है, तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, क्योंकि तब ऑलमोस्ट कोरोना एकदम फुल फ्लेजेड चालू था बाहर, तो हम लोग कहीं बाहर तो जा नहीं पा रहे थे। तो मैंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया और डॉक्टर से सलाह ली वर्चुअल कॉल पे। तो उन्होंने मेरे को कुछ मसल रिलैक्सेंट और कुछ पेन किलर सजेस्ट किए, तो मैंने वो सारी चीजें ली फॉर अबाउट क्लोज टू 1 वीक। तो 1 वीक के बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरा पेट शायद थोड़ा सा फूल गया था, तो मेरे को झुकने में या फिर घर के कामकाज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन और पेन भी मेरा चालू था। तो मेरे को ऑफिस की काम ये सब मैं कर रही थी। तो जब मुझे ये एहसास हुई कि मैं नीचू नहीं हो पा रही हूँ, या नीचे होके कुछ काम करने में मेरी दिक्कतें बढ़ रही है और पेन भी नहीं गया, तो मैंने उनसे फिजिकली जाके मिली। तो जब मैं फिजिकली जाके मिली और मैंने ये भी बोला कि ये मसल रिलैक्सेंट खाने के बाद मुझे थोड़ा सा ब्लोटिंग ऐसा फील हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि आप एक सर्जन से मिलिए, कोई भी सर्जन। तो एक छोटी सी क्लिनिक है, तो वहां पे उस टाइम पे एक गायनोकोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने बोला कि आप, वो सर्जन है, वो गायनोकोलॉजिस्ट है, आप उनसे जाके मिलो। तो मैंने उनसे मिली, तो वो मेरे पेट पे स्टेथो रखने के बाद ही उनको फील हुआ कि मेरे पेट में वाटर एक्यूमुलेशन हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आपके इसमें तो रिटेंशन है, आप एक काम करो, जल्दी से एक यूएसजी करो। तो मैं यूएसजी की, और यूएसजी में ही सर रेडियोलॉजिस्ट मेरे से पूछने लगे कि आपको कोई पेन क्यों नहीं हो रहा है। मैंने बोला मेरे को बिल्कुल भी कहीं पे कुछ पेन नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके साथ कौन आया है। मैं अकेली गई थी। उन्होंने बोला नहीं, आपके घर वालों को बुलाइए, क्योंकि आपको पास एक ट्यूमर है और वो काफी एडवांस स्टेज में है, आपको सिर्फ यूएसजी से नहीं चलेगा, आपको शायद सिटी स्कैन भी करवाना पड़े।
तो आप जल्द से जल्द ये सब चीजें करना शुरू कीजिए। और जैसे डॉक्टर ने बोले, मेरे हस्बैंड पुणे में नहीं रहते हैं, ही इज पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कंसर्न, तो वो जहाँ पे पोस्टेड हैं मैंने उनको बताया, सो वो तुरंत नेक्स्ट डे आ गए और फिर वो सिटी स्कैन के थ्रू ही मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। सो एज सच आई वुड नॉट से दैट आई वाज कैरिंग सम सिम्टम्स जिसके वजह से ये डायग्नोस हुआ। इट वाज अ वेरी मिराक्युलस डायग्नोसिस। तो आप बता सकते हैं कि आपके फैमिली में कोई ऐसा फैमिली हिस्ट्री था किसी के साइड से? हाँ, ये क्वेश्चन डॉक्टर ने भी मेरे को पूछा था, बट मेरे पापा को हुआ था, दैट वाज अ थ्रोट कैंसर। वो काफी लेट एज में हुआ था, ऑलमोस्ट व्हेन ही वाज 75 प्लस। लेकिन डॉक्टर्स वर मोर, माने वो ज्यादा पूछ रहे थे मेरे से कि आपके मम्मी के साइड से किसी को हुआ था क्या, कि मम्मी को हुआ था या नानी को हुआ था। तो मेरी मम्मी को कुछ नहीं था, कैंसर तो बिल्कुल ही नहीं था। हाँ, उनके काफी सारे ऑपरेशंस हुए थे बट नॉट कैंसर। बट और उनके अलावा उनके लाइन ऑफ जेनेटिकली तो ऐसा कुछ हमें पता नहीं था कि हुआ है बोल के। सो बट जब मेरा बारका 1 बारका 2 टेस्ट हुआ आफ्टर माई 3 राउंड्स ऑफ केमोथेरेपी, 6 राउंड्स ऑफ केमोथेरेपी एंड द ऑपरेशन, मेरे दोनों ही टेस्ट नेगेटिव आए। तो आपने बोला कि आपका फैमिली हिस्ट्री है नहीं, मतलब एक था वो पापा के तरफ से पापा था। की लाइन साइड से तो था। आपको ये बहुत शॉकिंग होगा क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और आपने भी बोला मैम कि वो ट्यूमर था अंदर पर आपको पता भी नहीं चला, इतना नहीं, लंबा ट्यूमर था। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो आपको जब डायग्नोस किया था तो आपका रिएक्शन कैसा था, और आपके फैमिली को जब पता चला तो उनका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन डेफिनेटली बहुत ही बुरा लगा। और मुझे अभी भी याद है, जो मैंने सिटी स्कैन हुई, फिर कैंसर मार्कर, वो जो एक CA-125 का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट हुआ। उसके बाद हमें पूछा गया था कि, मतलब डॉक्टर एक्चुअली विश्वास नहीं कर रहे थे कि उस एज में, एज इन एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज 38, तो वो बोल रहे थे कि 38 में किसी को ओवरियन कैंसर, टिल एंड दैट टू एट दिस स्टेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये हो नहीं, मतलब यूजुअली नहीं होता है। इट मोस्टली हैपेंस विद पीपल जो कि 60 एंड अबव हो, या फिर जिनका मेनोपॉज हो चुका है एंड ऑल दैट। तो वो मेरे को बोले कि मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं आपको हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे। तो मेरे ओवरी से लाइव टिश्यूज निकाले गए और उसकी बायोप्सी हुई। वो रिपोर्ट जब आया और देन इट वाज कंफर्म्ड, सील्ड, कि शी इज कैरिंग दैट एजेंट। तो काफी बहुत ही मैंने, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू उस चीज को, बहुत ही ऐसे जैसे मैं अभी बोल रही हूँ इस तरीके से उसको लेने की। और फिर हम लोग भागे, मतलब मेरे हस्बैंड को वो पता चला, वो ऑनलाइन में देखे, एंड देन मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ किचन में थी, तो हम लोग सभी रो पड़े डेफिनेटली। और फिर हम लोग भागे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने जब देखा तो वो भी बहुत सरप्राइज हुए कि नाउ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये हुआ तो नाउ वील हैव टू मूव अहेड। अब पीछे जाने की तो कोई माने देयर इज नो अपॉर्चुनिटी। सो फिर चलते गए। तो डेफिनेटली जब उन्होंने वो कंफर्म किया तो मेरे लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट था उसको एक्सेप्ट करना। बट सर ने जैसे मेरे को उस वक्त जैसे मेरी काउंसलिंग की मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ, तो वो चीज आई थिंक मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट था, मेरे को वो इनिशियल हिट लेने के लिए। जी मैम, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आपने वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और जी। आपका जो हाँ फैमिली का, उनका भी इमोशनली बहुत ही लो हो गया होगा क्योंकि हाँ। पर ये सुन के अच्छा लगा कि आपको कोई मेंटल सपोर्ट था, वो भी प्रोफेशनल वाला, जी, क्योंकि वो एग्जैक्टली। बहुत ही जरूरत है। जब भी कोई या ऐसे न्यूज़ देते हैं तो फैमिली और पेशेंट को भी बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा हुआ। जी जी। तो आप बता सकते हैं कि आप कैंसर में आपका कौन सा ट्रीटमेंट हुआ था? हाँ, सो ट्रीटमेंट बोले तो मेरी सर ने यही बोला था कि आपकी एक
पहले आपको 3 राउंड्स ऑफ कीमो दिए जाएंगे, उसके बाद सर्जरी होगी और उसके बाद फिर से 3 राउंड की कीमो दिया जाएगा। और मेरी जो कीमो का जो लेवल था दैट वाज अ वेरी एडवांस्ड लेवल। और फिर वो एडवांस लेवल उन्होंने बोला कि और भी फ्यू मोर साइकिल्स देंगे। तो उन्होंने बोला था कि 17 राउंड्स ऑफ साइकिल्स होगा और वो 17 राउंड साइकिल्स के बाद आपका ट्रीटमेंट हम लोग खत्म करेंगे। तो ये पूरी चीजें उन्होंने उस वक्त बता दिया था। और हम लोगों के पास और कोई चारा नहीं था एक्चुअली कि हम लोग उसको लेके वेरीफाई करें। या यूजुअली क्या होता है ना, इन सब चीजों में लोग टाटा मेमोरियल यूजुअली कैंसर हॉस्पिटल में ही दौड़ते हैं। बट उस वक्त हमारा सिचुएशन ऐसा था कि बाहर कोरोना है। मैं उस टाइम पे मेरे को ले जाना, हम लोग पुणे में हैं, तो पुणे से मुंबई का सफर करो, फिर वहां पे रहो, वहां पे ट्रीटमेंट कराओ, तो और फिर कोरोना में तो वो ज्यादा रिस्की होता। तो हमें वहीं पे करना था। और लेकिन हमने क्या किया था, वी टुक वन सेकंड ओपिनियन फ्रॉम डॉक्टर अडवाणी। So Dr. Advani is a very renowned medical oncologist. He is also a Padma Shri. तो डॉक्टर अडवाणी ने जब हमें मेरी केस देखा और उन्होंने मेरे को बोले, उनके साथ ही मैंने वर्चुअल कॉलिंग ही किया था, वर्चुअल अपॉइंटमेंट ही था मेरा, कंसल्टेशन रादर। तो जब उन्होंने मैंने वो सील दिया, एक मोहर लगाते हैं ना उस पे कि नहीं, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही है, डॉक्टर ने जो बोला एकदम सही चीज बोला, अगर आप टाटा मेमोरियल में भी जाओ तो वहां पे भी आपको यही चीज करना होगा। तो हमें लगा कि जब डॉक्टर अडवाणी बोल रहे हैं कि द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज फाइन, तो लेट्स कंटिन्यू हियर। अभी इस कोरोना के टाइम पे बाहर जाके एक्सप्लोर करने की कोई जरूरत नहीं है, रादर लेट अस कंटिन्यू विथ हियर। तो जब ये चीज हुई, 12 तारीख को मेरा वो रिपोर्ट आया और 18 तारीख से मई 12 मुझे वो हिस्टोपैथोलॉजी का रिपोर्ट आया। और फिर डॉक्टर की अडवाणी से मिलना, मेरे डॉक्टर से मिलना, ये सब करके 18 मई 2020, मतलब 6 दिन के अंदर मेरी कीमो स्टार्ट हो गई थी। कि मैम ये जान के खुशी हुई कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला, वो भी पैंडेमिक के टाइम पे, क्योंकि बहुत लोग को बहुत प्रॉब्लम्स थे उस टाइम, चाहे एक हॉस्पिटल में भी क्यों ना जाना हो, क्योंकि इतना फैल रहा था कोविड। हाँ, और उस वक्त में भी आपको एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जैसे कोविड सबके लिए बहुत ही मुश्किल था, ऊपर से आपको अब कैंसर का भी डायग्नोसिस हो गया था, तो आपको थोड़ा मेंटली ब्रेकडाउन वगैरह था। तो ऐसे इमोशनल वाले वक्त में आपने वो कैसे मैनेज किया? हाँ, तो बेसिकली क्या है ना, सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं आई वॉज इन टू माइंड्स विथ माई ऑन्कोलॉजिस्ट। जब डॉक्टर निखिल पर्वते, मुझे पता नहीं था कि वो किस लेवल के डॉक्टर हैं, क्या हैं, कैसी उनकी सर्जरी रही है। मैंने उनके कोई भी प्रीवियस पेशेंट से बातचीत नहीं हुई थी मेरी, तो मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। बस आई ओनली नो दैट कि वो जो मेरे नियर बाई, घर के जो नियर बाई हॉस्पिटल हैं वहाँ के हैं, और उन्होंने ये ट्रीटमेंट बोला। बट डॉक्टर अडवाणी इज अ वेरी वेल अक्लेम्ड डॉक्टर। ओके, तो उनके बारे में जब हम सब जानते हैं, मतलब पहले नहीं जानते थे, बट ये होने के बाद जब मैंने उनका रिव्यू देखा और मैंने देखा कि वो कितने बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जब उन्होंने ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को सही बोला, फिर एक्चुअली मैंने उनको ट्रस्ट किया। तो उन्होंने, उनकी जो उस दिन की मीटिंग मुझे अभी भी याद है, इट वाज 17 मई, पॉसिबली वो रविवार होगा। तो ऐसे ही मैं उनसे बात कर रही हूँ, एंड दैट टाइम ही मेंशन्ड कि या इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 6 months एंड देन यू विल बी फ्री। सो वो जो फ्री वर्ड उन्होंने बोला, आई थिंक दैट हैड हिट मी द मोस्ट। कि कोई डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स देख के, वो कितनी भी खराब हो, कोई रिपोर्ट देख के वो बोल रहे हैं कि उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं फ्री हो सकती हूँ। तो वो जो उन्होंने मेरे अंदर जो वो होप या आशा की जो, मैंने थोड़ा सा भी जो चिंगारी है, जो भी बोलो, आई एम नॉट दैट गुड इन हिंदी लैंग्वेज, तो वो जो उन्होंने एक जोत जैसे दिखाई मेरे को,
आई जस्ट केप्ट ऑन माई फोकस टू दैट होप कि मैं ठीक हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हो सकती। काफी सारे लोग ऐसे जर्नी से निकल के आते हैं, मैं भी आ जाऊंगी। तो ऐसे करके ही मैंने उस टाइम पे मैंने अपना फोकस को जारी रखा। एंड थैंकफुली माय हस्बैंड आल्सो हैड, मतलब उन्होंने भी वही चीज मेरे को बार बार दोहराते गए। एक क्या होता है ना, हम लोग समझते हैं, वो चीज को पकड़ते भी हैं, लेकिन उसको पकड़ के रखने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो कभी कभार खुद को देख के या खुद की परेशानियों से झेलते हुए वो कभी कभार ना ऐसा अप डाउन होते रहता है। तो वो जब डाउन होता था, डेफिनेटली माय हस्बैंड यूज्ड टू टेल मी कि अरे यार छोड़ो इसको, चलो टीवी देखो, चलो ये करते हैं, अरे इसको। उनकी अप्रोच जो होती थी कि ये इट्स अ वेरी ट्रिवियल थिंग, ये बहुत ही छोटा चीज है, इसको लेके सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई थिंक दीज थिंग्स यूज टू हेल्प मी टू कम बैक टू माई लाइन, माई फोकस, कि आई विल कम आउट ऑफ इट। मुझे बस इन चीजों को झेलना है। अब भले ही वो 1 साल की, क्योंकि मेरे को वो प्रोजेक्शन भी मिल गया था कि मेरी ट्रीटमेंट साल भर तक चलेगी, आई विल नॉट गेट रिलीव सो इजीली, कि मेरा 17 राउंड का एडवांस्ड कीमो होगा, 6 राउंड का ये होगा, एक ऑपरेशन सामने है। बट वही तारीख देख के मैं चल रही थी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ मैम। आपने जैसे कहा, ये जो कैंसर जर्नी है, इसमें सबको बस एक शब्द की जरूरत है, एक होप की जरूरत होती है, वो ही उनके लिए काफी होती है पूरे जर्नी में, उनको आगे बढ़ने के लिए, वो पॉजिटिविटी के साथ। तो और फैमिली सपोर्ट तो फिर वो तो और हाँ, भी हाँ, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या है जो आपको बहुत ही मदद किया पूरे जर्नी में टिकने के लिए? देखिए, एक तो मैं बोलूंगी कि ये मेरी डॉक्टर ने भी, मैंने पूछा था उनको कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों हुआ, मेरा BRCA1 BRCA2 नेगेटिव है, फिर भी मेरे को क्यों हुआ। ऐसी मेरी लाइफस्टाइल भी इतनी खराब नहीं थी कि मैं मतलब बहुत ही मैं ऐसा लाइफस्टाइल लीड कर रही हूँ जो कि मेरे को कैंसर के टाइप की चीजें करती हूँ, या मैं सिगरेट पी रही हूँ, या मैं अल्कोहल ले रही हूँ। ऐसी लाइफस्टाइल मेरी नहीं थी। आई वाज अ वेरी प्रिटी नॉर्मल, एक मिडिल क्लास वुमेन लाइफस्टाइल जैसी होती है, वैसी ही लाइफस्टाइल थी। तो डॉक्टर ने मेरे को यही बोला कि इसका एग्जैक्ट कारण मेरे को भी, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू। जेनेटिक, हम लोग बोलते हैं कि इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, बट जब BRCA1 BRCA2 इज बोथ नेगेटिव, देन हाउ इट हैज कम इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट। ओके, सो कैसे अगर बोला जाए तो मैंने अपने आप को ना बहुत सी चीजों से इन्वॉल्व करके रखा था। जैसे आपको मैंने पहले बोला थी था कि मेरी एक छोटी सी बच्ची है, राइट नाउ शी इज 7.5। तब तो वो 5 साल जस्ट उसका हुआ था। तो उसकी जो चीजें हैं कि वो स्कूल में जा रही है, वो नई नई स्कूल में एडमिशन, मतलब उसका सीनियर KG चल रहा था तब, हमने उसको उसके प्री स्कूल से निकाल के उसको एक स्कूल में डाले थे। तो उसकी जो सारी जो चीजें होती है वो सब मेरे सामने थी। हाँ, तो उसी उसी पे ही मैंने ज्यादा फोकस डाला एक्चुअली, कि उसकी चीजें, उसकी जरूरतें, और उसी में मैंने आपको पूरा दिन एंगेज रखती थी। क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को यही बोला था, आफ्टर एवरी कीमो मेरे को बहुत डिफिकल्टीज होती थी, मैं तो उठ भी नहीं पाती थी बिस्तर से। लेकिन डॉक्टर ने यही बोला था कि तुमको एंगेज रखना है खुद को। ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे कि मैं बहुत थक गई हूँ, जब थक जाओ तुम रेस्ट कर लो, लेकिन पूरा दिन तुमको बिस्तर में नहीं रहना है। यू विल नॉट बी ऑन बेड। तुमको घूमते फिरते जो कुछ करना है, तुमसे जो काम होता है वो तुम करते जाओ। जब तुम मतलब तुम्हें फील हो रहा है कि मैं और नहीं कर सकती हूँ या मैं थक गई हूँ, डेफिनेटली तुम रेस्ट कर लो। तो ऐसी चीजें मैं करती थी। तो मेरा, हाँ, मैंने अपने जॉब से सबैटिकल लेके रखा था, क्योंकि जॉब का एक डिलीवरी, एक डिलीवरेबल्स का चीज होती है, तो वो नहीं कर पाती थी मैं। तो वहां से मैंने क्विट किया। घर का जितना भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा होता था मैं वो काम काज करती थी। बच्ची का पूरा ध्यान मैं रखी हूँ उस वक्त भी। और फिर आसपास में भी अगर एक छोटी बच्ची आ जाती है, उसके साथ खेलना, तो मैं वो उन लोगों को देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता था।
और सेकंड चीज है, जब मैं खुद कीमो लेने जाती थी वहां पे मैंने काफी सारे बच्चों को देखा जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर एलिमेंट्स के साथ हैं। किसी का ब्लड है, किसी का कुछ और है, और काफी छोटे छोटे बच्चे। तो वो भी वहां पे वो बेड पे ना अपना खेलते थे, स्टोरी बुक्स लेके पढ़ते थे। तो उनको देख के मुझे लगता था कि अरे यार, इन लोग ऐसे करके अगर ये इसको ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। सो डेफिनेटली वो बच्चों को देख के मुझे काफी स्ट्रेंथ आया। हाँ मैम, जो आपने बोला वो बिल्कुल सही था। जैसे हमारे माइंड को बहुत डिस्ट्रैक्टिंग की जरूरत है। हमारा माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव चीजें सोचनी चाहिए ऐसे दौरान। और फिर आपने वही सही बोला कि जैसे ये हीलिंग सर्कल है, इसमें हम एक इंसान, एक पेशेंट, एक वॉरियर की कहानी सुनते हैं और हम इंस्पायर होते हैं। वैसे ही आप हॉस्पिटल गए, अपने बच्चों को देखा, जी आपको इंस्पिरेशन वहां से मिला कि बच्चे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं जरूर। बिल्कुल। तो मैम, आपने बोला कि आपका कैंसर से पहले लाइफस्टाइल अलग था, कैंसर के बाद भी लाइफस्टाइल अलग था। तो आप बता सकते हैं ऐसे कौन से चेंजेस आपकी लाइफस्टाइल में हुआ कैंसर के दौरान और कैंसर के बाद भी? ओके, तो बेसिकली मुझे लगा जो चीज, मैं ऐसा उसको 3 स्टेज में उसको मैं डिवाइड करती हूँ। एक था जो प्री स्टेज, जब मुझे पता नहीं था कि, और ज्यादातर में भी शायद मैं ठीक थी। अब मेरे को कब से ये चीज लगी, आई डोंट नो, नाइदर कुड माई डॉक्टर से कि आपको इस साल से शायद इसका डेवलपमेंट हुआ है। नोबडी कुड टेल मी दैट। तो उसकी पहले जो जिंदगी थी इट वाज काफी नॉर्मल थी, बट हाँ थोड़ी सी हेक्टिक थी। मतलब रात को नींद ठीक से लेना, या फिर जैसा शेड्यूल था मेरा उसमें मुझे काफी कम टाइम का नींद मिलती थी। तो वो एक चीज थी। बट अदरवाइज जो काम काज खाना पीना जो नॉर्मल था वो ही मैं लेती थी। लेकिन जब ये चीज हुई, जो इम्पोर्टेंट चेंज नोटिस हुआ कि सर ने मेरे को 4 चीजें बोले थे ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी मेट, व्हेन मी एंड माय हस्बैंड वेंट टू हिम विद दैट हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। उस दिन उन्होंने मेरे को बोला था कि एक नेक्स्ट 1.5 ईयर जब तक ना आपकी ट्रीटमेंट खत्म हो, मैं आपको ये 4 चीजें बोल रहा हूँ, ये आपको एक आर्मी सोल्जर की तरह फॉलो करना है। वो क्या है? फर्स्ट चीज है, आपको हल्दी का पानी पीना है। हल्दी का पानी पीना है। आपको रोज एक एग लेना है। आपको रोज पालक का सूप लेना है। और आपको नाचनी लेना है कि शाम के वक्त कभी भी, आप दिन में कभी भी कुछ भी हो जाए, आपको नाचनी लेना है। तो ये 4 चीजें मैंने, मतलब उन्होंने यही बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये 4 चीजें करनी है। तो ये मैं लगातार करती गई। उसके बाद मैंने मतलब जिन जिन को हुआ था और सर्वाइवर्स हैं, उन्होंने बोला कि तुम्हारा प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाएगा आफ्टर एवरी कीमो। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप वो जो क्या बोलते हैं, पपीते का पत्ता का बॉईल करके उसका पानी। तो ऐसे कुछ 2-3 चीजें हैं, मतलब अब कुल मिला के सोच लो कि 7-8 चीजें हैं जो मैं लगातार करती हुई गई हूँ। चाहे मुझे अच्छा लगे नहीं लगे, उसका टेस्ट क्या है नहीं है, मैंने उन सब चीजों में अपना दिमाग नहीं लगाया। मेरे को लेना है, मैं लेते गई। तो ये दिस वाज अ बिग चेंज, क्योंकि ये सब चीजें मैं पहले नहीं करती थी डेफिनेटली। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज था। और एक चीज था कि ना, लाइफ में जब कुछ होता है वो क्यों हुआ, वो क्यों क्यों का क्वेश्चन नहीं करके जो मैं पहले करती थी कि ऐसा ही मेरे साथ ही क्यों हुआ है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ ये चीज देखना है या ये चीज करनी है। तो वो सारी क्वेश्चनिंग बिल्कुल बंद हो गई। तो आई वॉज मोर एट पीस। और मुझे बहुत वक्त मिला मेरे साथ, खुद के साथ बिताने के लिए। So it was a great time for myself as a self exploration, to know myself, जो हम लोग अभी नहीं कर पाते हैं because of various काम का pressure, schedule, घर. Most women don't have time to spend with themselves.
तो मैंने वो टाइम खुद के साथ बिताया एक्चुअली। आपने बिल्कुल सही बोला मैम। जैसे बहुत सारे कैंसर वॉरियर्स ने बोला है ऐसे कि कैंसर के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर कितना स्ट्रेंथ था, और आपने इतना स्ट्रिक्टली और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ आपने अपना डाइट फॉलो किया, और आपने वो अभी भी फॉलो करते हैं। और वही हम अपना बॉडी को इतना, हमारी बॉडी रोज बहुत बहुत चीजों से गुजरता है, पर हम उतना ख्याल नहीं रखते हैं। तो वही है जो आपका कंसिस्टेंसी, आपने जो आज आप ऐसे खिल के बैठे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो आप बता सकते हैं ऐसा 3 सीख जो आपको मिला इस कैंसर जर्नी में? 3 तो बहुत कम नंबर है, बहुत ज्यादा ही सीख मिल गई है इस जर्नी के थ्रू। बट इफ आई हैव टू से कि द टॉप 3, देन आई वुड डेफिनेटली से कि हम सभी को एक हेल्थ चेकअप करनी चाहिए एवरी ईयर। जो जो हम लोग ऑफिस के हैं या फिर अपने स्पाउस के थ्रू, या फिर कुछ भी हो जाए, अगर मेडिक्लेम मिलता है नहीं मिलता है, कुछ भी हो जाए, एक ईयरली चेकअप is a must. And if you are more than 35, तो it is absolutely necessary कि हम लोग वो ईयरली चेकअप करती रहे। और उसके बाद उससे क्या होता है ना, वो ईयरली चेकअप काफी सारे कॉर्पोरेट्स के साथ ये टाई अप्स हैं, और उससे क्या होता है, हमारी यूएसजी बोलो और अल्ट्रासाउंड, ये सब चीजें हो जाती है। तो एक बार तो पता ही चल जाता है। इफ इट इज ट्वाइस अ ईयर, that is more than good. Okay, ये तो डेफिनेटली एक सीख मैंने सीखी वहां से। और दूसरी चीज है कि कुछ चीजें टाइम के ऊपर भी छोड़ना चाहिए। हम लोग काफी सारे एक टारगेट्स लेके चलते हैं, स्पेशली कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट। मैं एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ, तो एमबीए में जैसे हम लोगों को सिखाता है ना कि फ्रॉम डे 1 यू शुड हैव योर टारगेट्स, यू शुड हैव योर गोल शीट, ये वो। आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। कुछ चीजें हमें, आई वुड नॉट से तकदीर, बट आई वुड से टाइम, वी शुड लिव इट ऑन टाइम, कि समय के साथ उसको छोड़ दो। अगर वो होना है वो जरूर होगा। अपने हाथ में जो है, जो हम लोग जिस चीज के अंदर हैं उसको अपन देखे, उस पे फोकस करे, वो हमें अच्छा लगे नहीं लगे, दैट इज इमटेरियल। बट जो टाइम पे जो चीज हमारे सामने है, हमें उस पे ही फोकस करना चाहिए, और तैयार होना चाहिए आगे के लिए, कि हमारी जो ड्रीम्स हैं, जो पैशन है, उसको लेके तैयार हो। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल किसी को जॉब चाहिए, अब वो जॉब मिल नहीं रही है, वो सोचे जा रहा है कि मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों नहीं आ रहा है। अब ये तो हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जॉब इंटरव्यूज दे सकते हैं, जब उस जॉब को मिलना होगा आपको मिल ही जाएगा। ये मेरी सबसे बड़ी सीख है। एंड द लास्ट important of the many seeks that I have got is कि जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन का एक वैल्यू होता है लाइफ में। ये मैंने इस जर्नी के थ्रू ये मैंने रियलाइज किया है कि ये जो टाइम है, हम लोग उस टाइम को अच्छा बोलो या खराब बोलो, वो टाइम हमें कुछ सिखाता है। तो बेटर टू कंप्लेन अबाउट दैट टाइम। अगर वो टाइम अच्छा नहीं है, मेरे ख्याल से उस टाइम ने हमें जो सिखा रहा है वो चीजें सीख लो, क्योंकि वो सीखा नहीं है बोल के ही वो तुम्हारे लिए जिंदगी में वो टाइम आया है। तो दैट्स द लर्निंग विच आई हैव एंड विच आई एम फॉलोइंग नाउ, कि अभी जैसी मेरी टाइम है, वॉट एवर लेसन्स आई हैव टू गेट फ्रॉम दिस टाइम, लेट मी फोकस ऑन दैट एंड डू माई वर्क। इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। नथिंग इज दैट आई कैन कंट्रोल। दिस इज समथिंग विच आई हैव लर्नड इट बिग टाइम। मैं कुछ नहीं कंट्रोल कर रही हूँ। अब वो भगवान हो या कुछ और हो, या इट्स एन इटर्निटी, इट्स अ डिवाइन थिंग, बट डेफिनेटली आई एम नॉट द कंट्रोलर। जो होना होगा वही होगा। आपने बिल्कुल सही कहा मैम। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम हमेशा आज के लिए जीना चाहिए। हम कल के बारे में उतना फिक्र करके आज हमारा जो है वो
हम खराब कर रहे हैं, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपने जैसे बोला कि हमारा लाइफस्टाइल, उसमें हमें फोकस करना चाहिए। जैसे ऑफिस के लोग हैं या फिर कोई और भी काम करते हैं, उनको भी अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी का भी हेल्थ कभी भी बोल नहीं सकते। तो और मैम, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं चैट में, जो हम ये सेशन के बाद लेंगे आराम से। और बहुत अच्छा लगा कि आप सब एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, चैट सेशन में ही क्लियर कर रहे हैं। तो मैम, अब एक मैसेज आप, जो आपको कैंसर पेशेंट्स या फिर कैंसर केयर गिवर्स जो आपको सुन रहे हैं, उनको देना चाहते हैं। मेरी मैसेज जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको यही होगी कि इस वक्त को थोड़ा सा समझदारी से लीजिए। पहली बात तो यह है, एक फॉर्मल वे ऑफ ट्रीटमेंट में अगर आप हैं तो दैट इज वेरी गुड। अगर आप कुछ अदर देन फॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके अलावा अगर कुछ और अदरवाइज ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप कीजिए, बट देन यू हैव अ कंसल्टेशन विद द फॉर्मल ऑन्कोलॉजिस्ट। एक जगह जाइए जहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट जहाँ पे होती है, वैसे फॉर्मल जगह से अपनी ट्रीटमेंट कीजिए, दैट इज फॉर श्योर। एंड सेकेंड थिंग, चाहे जो भी हो जाए, जब जाना होगा तब तो जाना ही होगा, तब हम अपने आप को रोक नहीं सकेंगे। लेकिन जब तक हम लोग हैं, लेट अस हैव दैट बिलीफ, कि वो भरोसा हो कि ठीक है, दैट्स ओके, ये टाइम निकल जाएगा, डेफिनेटली ये टाइम निकल जाएगा। डेफिनेटली वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, बट उसका भी एक अंत होता है, तो वो अंत होगा ही डेफिनेटली। और हम लोग क्या करते हैं ना, पहली चीज सोच लेते हैं कि अरे मैं जिंदा रहूंगी क्या, तो ये चीज हमें पहला चीज जो स्ट्राइक करता है कि विल आई बी अलाइव नाउ। दैट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि अलाइव होना या नहीं होना, इट इज नॉट इन माय हैंड्स। वो जो तारीख लिख के मैं आई हूँ, उसी तारीख को ही कुछ ना कुछ होगा। सो अंटिल दैट डेट, लेट मी लिव माय लाइफ, लेट मी लिव इट द वे इट इज। ठीक है, हुआ है, ट्रीटमेंट हो रही है, डेफिनेटली थिंग्स विल बी फाइन। तो माने वर्स सोच के, खराब सोच के आपको क्या मिलने वाला है? नथिंग। लेकिन अगर अच्छा सोच के फिर भी आपको अगर कुछ ना मिले, एटलीस्ट आपको खुशी तो मिलेगी। आप अगर खुश रहोगे, आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे, या फिर उनको वो स्ट्रेंथ मिलेगा फाइट करने के लिए, क्योंकि वो भी इक्वली आपके साथ फाइट कर रहे हैं। तो that will be my suggestion. And for caregivers, definitely I would say that it's a difficult time. अगर घर पे किसी को हो और वो तकलीफों को थ्रू जा रहा है या जा रही है, उस और उन पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो तकलीफें ही जाहिर कर रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट एक्सप्रेस योर प्रॉब्लम्स, या फिर तकलीफ जाहिर ना करना, या फिर हंस के उसको लेना ताकि केयर गिवर्स को प्रॉब्लम ना हो। ये करना बहुत ही मुश्किल है, मैंने वो किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि थ्रू आउट किया है, कभी कभार मैं फेल भी हो चुकी हूँ, लेकिन आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट नॉट टू बॉदर माई हस्बैंड टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि वो अकेले थे जो कि फाइट कर रहे थे। बाहर में कोरोना था, पूरी फैमिली, मेरी एक छोटी बच्ची, माई मदर इन लॉ इज एज्ड, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी। बट आई हैव ट्राइड टू गिव हिम दैट पॉजिटिविटी कि चलो ठीक है आप, एंड दैट ट्रस्ट कि यू नो वॉट एवर यू आर डूइंग, आपने जो डिसीजन लिया, आई एम फाइन। मेरे साथ जो भी हो रहा था हॉस्पिटल में, मैं अपने आप में ही वो रहती थी। आई नेवर यूज्ड टू बॉदर हिम मच। ओके, तो केयर गिवर्स के लिए यही है कि हैव दैट जितना चाहे आप उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। उनकी प्रॉब्लम्स में वो जब भी कुछ एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं कि मेरे को यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, ट्राई टू डाइवर्ट, मतलब कुछ भी करके, या घर पे अगर बच्चे हो उनके साथ उनको मिला के, क्योंकि बच्चों को समझता नहीं है ना। माई डॉटर येट इज एबल टू अंडरस्टैंड कि मम्मी को हुआ क्या था, वो क्यों जाती थी। उनको लगता था कि मैं जा रही हूँ बाहर, आई एम एंजॉइंग माई टाइम। ओके, तो ऐसा लगता था। तो बच्चों के साथ रहने में ये एक एडवांटेज है कि आप अपना वो सोच, आप अपना वो कष्ट और दुख और जो भी हो, उसको कुछ हद तक भूल जाते हो उस टाइम के लिए।
So the caregivers, if they are able to do that with the patients, at least उनकी तकलीफ कम होगी, वो थोड़ा सा उनको भरोसा मिलेगा कि वो आगे के टाइम के लिए वो अपने आप को तैयार कर सके, और डेफिनेटली दैट दिस टाइम विल पास। बिल्कुल मैम, और आपकी ये जो पॉजिटिविटी है, जो आप सब जानते हैं कि कैंसर कितना ही पेनफुल और स्ट्रेसफुल वाला जर्नी है, फिर भी आपने हर एक मोमेंट में अपने पॉजिटिविटी ढूंढी, कैसे खुद को खुश रख सकते हैं, कैसे अपने पास वाले, अपने नजदीक वालों को खुश कर सकते हैं, ये सब आपने सोचा, और आज भी आप बहुत एक मुस्कुराहट के साथ ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैसे आपने ये जर्नी को एक ब्लेसिंग बोला, तो आपका ये जर्नी अगर आपको एक सेंटेंस में अगर आपको ये बताना है तो वो क्या होगा? एक सेंटेंस तो मुश्किल है लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये एक्सपीरियंस आई थिंक कुछ पर्पस तो डेफिनेटली रहा होगा, या फिर नॉट होगा, है। डेफिनेटली देयर इज सम पर्पस, या फिर भगवान का कुछ तो प्लान होगा जिसके लिए उन्होंने मेरे को इस जर्नी के थ्रू या फिर इस टनल के थ्रू मेरे को उन्होंने एक राइड दिलाया और मैं वही ढूंढने की कोशिश में हूँ कि ये पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस फॉर मी टू गोइंग थ्रू दिस टनल, this dark tunnel, okay? And I'm very sure कि मेरे को जो oncologist मिला, या फिर जो मेरे जो सर्जन थे या मेरे जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थे, वो लोग इतने टॉप क्लास ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और वो जो कर रहे हैं, तो वहीं से मेरे को एक आइडिया मिली कि मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट चाहते हैं कि जिसको ओवरियन कैंसर हो रही है एट अ वेरी अर्ली स्टेज, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई या बच्चे नहीं हुए, और वो चाहते हैं कि हम लोग उनको भी माँ बनने का मौका दिया जा सकता है, बिकॉज वंस ओवरी, बिकॉज कीमोथेरेपी में क्या होता है ना, आपके सारे ऑर्गन्स को जला देते हैं जिस पार्ट में ये डिजीज पाया जाता है। तो उनकी ये विजन है कि वी कैन डू समथिंग फॉर दोज वुमेन, उनकी ओवरी को निकाल के स्टोर करके उनको फिर पूरा ट्रीटमेंट दे दो, कीमोथेरेपी जो भी हो जाए करने के बाद उस पे फिर से वो ओवरी इम्प्लांट करके एंड देन दे कैन बिकम मदर्स, ओके? सो ये जो विजन है ये मेरे को बहुत क्लिक किया है, एंड टुडे आज अगर मैं कुछ कर रही हूँ, इट इज ओनली टू क्रिएट सम ग्रुप एंड समथिंग टुवर्ड्स दैट विजन, ताकि because motherhood is an extremely and a very beautiful experience, और मेरी बेटी का मेरे आज ठीक होने में उसको पता नहीं है कि उसका contribution कितना ज्यादा है, how much she has contributed with her innocence, with her problems, with her worries, she has helped me to come out of it, okay? तो मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की जो कि इस थ्रू जा रही है, and if they are not a mother yet, they can become a mother also, so they shouldn't feel depressed कि अरे मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। medical science has gone to that level that it can do that thing, and आज जो मैं कर रही हूँ या मैं करना चाहती हूँ is looking at this vision। तो मेरे ख्याल से शायद भगवान का यही इच्छा होगी शायद कि तुम कुछ करो इस लाइन में, एंड फॉर दैट ही हैज आस्क्ड मी टू टेक दिस पाथ। बिल्कुल मैम, मैं वो कह सकते हैं आपका ये जो थॉट है कि इतना होने के बाद भी आप आज भी सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये किसी और के साथ ना हो और जो आने वाले यंग जनरेशन के साथ ना हो, तो वो आपका वो सोच, वो मैं दावा के साथ कह सकती हूँ कि वो ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंट होगा फ्यूचर में, लाइक वो जो थॉट है वो ही काफी है, फिर तो आगे बढ़ेगा वो। तो मैम उसके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ, और थैंक यू सो मच मैम, आज आपने इतना पॉजिटिविटी अपना शेयर किया, ये जर्नी आपका जो बहुत इंस्पिरेशनल
जर्नी था, आपका एक्सपीरियंस था सुन के। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी आज आपको सुना उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिला कि हाँ, जिंदगी बहुत वैल्यूबल है और उससे खुल बिल्कुल के जीना चाहिए, हर पल बिल्कुल एंजॉय करके जीना चाहिए। बिल्कुल, यस। सो थैंक यू मैम। मैं डिम्पल मैम को, ओवर टू यू मैम। Thank you, Justina, and thanks a lot, Uma ji. It was really wonderful hearing you. आपकी जर्नी, जैसे आपने बताया कि आपका जब डायग्नोसिस हुआ था और डॉक्टर ने आपको, इट्स गुड कि आपका टाइमली आपको पता चल गया इसके बारे में। हाँ, फिजिशियन ने आपको टाइमली रेफर कर दिया ऑन्कोलॉजिस्ट के पास में, और अदरवाइज काफ़ी लोगों का स्टार्टिंग में इतना इजीली नहीं पता चलता है और बहुत लेट पता चलता है, तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। एंड आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता है कि यू हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी, एंड यू नो बिकॉज आप आज भी आप एकदम शाइनिंग ब्राइट। सो एंड रिसेंटली ये सब कुछ अभी रिसेंटली हुआ है, उसके बाद में, सो हैट्स ऑफ टू यू। इट्स योर पॉजिटिविटी, योर स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपका जो करेज है उसकी वजह से, आई मीन आई एम श्योर कि उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर रहा है। एंड आई थिंक 9 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, राइट, विच इज प्रीटी बिग, मतलब छोटा या नहीं होता है वो। So timely treatment, your family support, your husband was there with you. It's really good to know कि your lifestyle has changed, your perception towards life has changed, and एक नया phase है जिंदगी का, I'd say. यस यस। Yeah. एंड जैसे कि मैंने आपका स्टोरी भी यहाँ पे लिंक शेयर किया है सबके साथ में चैट में, जो आपने अभी शेयर किया, तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू गो थ्रू द स्टोरी। इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि कितना उन्होंने हंसते हंसते पूरी जर्नी को निकाल लिया, और आज वो एक इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए। एंड आपने जो डाइटरी चेंजेस किए, आपका जो इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट था ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, it's very important factors in going through this journey. So thank you for sharing that. And I love your message that you have written here for the patients, that you have told Justina in the last recording. That was one thing I would tell anyone going through this journey, that it is okay. Whatever came into your life came for a reason. Accept it and work through it without losing your sense of hope. Hope is really important. Hope is beautiful and it's wonderful. होप रख के हम लोग किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर होप है तो सब कुछ है। There will be difficult days and you will not enjoy the process or feel good all the days, but trust that these days are the better days ahead, and face life with a positive attitude. And we can totally see that vibrancy, that spark on your face, that your positive attitude and a good environment that you create around yourself. So, and that's what we also recommend to everybody at Zen Oncology and Love is Cancer. हम लोग we have been working with 50,000 plus patients, and हम सबको एक ही बात बोलते हैं कि मैंने पर्सनली बहुत सारे सर्वाइवर्स वॉरियर्स को इंटरव्यू किया है, एंड जो कॉमन चीज होती है सबके बीच में, वो कि एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना, एक राइट अप्रोच होना, राइट माइंडसेट होना, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशंस होगी जहाँ पे सब कुछ हमें रोजी रोजी नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, डिप्रेशन भी होगा, बुरा भी लगेगा, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, बट वो एक फेज है, और उस फेज को आने दो और चले जाने दो, उसको पकड़ के नहीं रखना है। बिल्कुल कैंसर नहीं भी होता है तब भी तो हम इन सब सिचुएशन से निकलते हैं ना, तब भी तो हमारे बैड डेज होते हैं, सैड डेज होते हैं, सब कुछ होता है, राइट। कभी काम करने का मन नहीं करता है, कभी रिलेशंस अच्छी नहीं होती, कुछ तो होता है, लाइफ हमेशा रोजी नहीं होती है। तो फिर जब कैंसर में ऐसा होता है तो उसको इतना पकड़ के क्यों रखना? इट्स ओके, इट्स ओके टू लेट गो ऑफ थिंग्स, एंड इम्पोर्टेंट इज दैट वी लुक इनर, हम अपने अंदर झांक के देखें कि क्या मेरी हीलिंग हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको खुद को फील करना है कि क्या आपकी इंटरनल हीलिंग हो रही है। नो मैटर आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, आप क्या ले रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट आपको फील कैसा हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एंड उमा जी, जैसे आपने बताया कि आपके डॉक्टर्स का बहुत सपोर्ट था, और आपने उनकी एडवाइस को, उनके ट्रीटमेंट को बहुत पॉजिटिवली लिया। और ये कि ना, चाहे किसी का भी सपोर्ट हो, किसी भी काउंसलर का, किसी भी डॉक्टर का, आपके हस्बैंड का, आपकी फैमिली का, जो एक होता है ना कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो सब अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे को अभी पता है कि मेरा मेरा प्लान क्या है, मेरा प्रोग्राम क्या है, मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर था, ओवरी तक स्प्रेड हो गया है, इट्स ओके, नाउ आई नो कि मुझे करना क्या है। सो
मेरी सारे कैंसर पेशेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद देखिए कि आपको क्या चीजें हैं जो आपको ठीक करेगी। एंड कैंसर में राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी सर्वाइवर से बात हुआ सबने यही बोला कि हमारा विल पावर बहुत स्ट्रांग था, हमारे पास अच्छा फैमिली सपोर्ट था, हमने अपना प्लान अच्छे से किया। आपका जो 3 चीजें होती है जो मैं बोलती हूँ हर एक पेशेंट को, कि आपकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी चीज आप करना चाहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए और बिलीफ होना चाहिए। और ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तभी हम किसी चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो शायद एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी होगा, लेकिन अगर बिलीफ ही नहीं है जो हम कर रहे हैं तो शायद उसका रिजल्ट उतना अच्छा ना मिले आपको। चाहे आप ब्रीदिंग ही क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक ले रहे हैं, आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं, हमें हमेशा इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि हम ठीक हो रहे हैं। और वो जो जो भी चीज हम कर रहे हैं, चाहे वो आप पानी ही क्यों नहीं पी रहे हैं, कि ये मेरे बॉडी अब मेरे सेल्स को जाके ठीक कर रहा है। एंड मैंने काफी स्टेज 4 सर्वाइवर्स से भी बात किया है जिन्होंने अपने सेल्फ हीलिंग से अपनी बॉडी को ठीक किया है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, या फिर कोई और बीमारी ही क्यों ना हो। मुझे हमेशा लगता है कि हमारी बॉडी में की जो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही इमेंस होती है, और अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो आई ऑलवेज शेयर दिस अमेजिंग स्टोरी ऑफ डायना, जो अभी शी मस्ट बी 65 year old, एंड उनको 30s में जब वो थी तब उन्हें कोलन कैंसर था, और वो कोलन कैंसर से ठीक हो गई। उसके बाद में उसी समय उनके हस्बैंड को किडनी कैंसर हुआ, और वो भी ठीक हो गए। उसके बाद में उसके अप्रोक्सीमेटली 20 साल बाद में डायना को फिर से अभी लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ, और इस वक्त वो स्टेज 4 था, और वो ब्रेन में मेटास्टेटिस हो गया था। और उसी समय उनके हस्बैंड को ब्रेन कैंसर हुआ। काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है किसी के लिए भी। पहले डायना को लंग कैंसर हुआ, एंड डायना ने बताया कि उनके कैंसर का ऑब्वियसली 4th स्टेज लंग कैंसर का कोई क्योर नहीं था, एंड वो यूएस में रहती हैं और उन्हें उनके पास बेस्ट ट्रीटमेंट का एक्सेस था। बट डॉक्टर्स ने बोला कि पॉसिबल नहीं है कुछ भी, एंड दिस इज द मेंटेनेंस जो आपको शायद 3 महीना जिंदा रखेंगी। बट शी वॉज सच अ डिटरमिन्ड लेडी कि मुझे अपने ग्रैंड किड्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए करना है। सो शी वॉज अ डांसर ऑल्सो। तो उन्होंने अपनी डांस प्रैक्टिस से अपनी, वो खुद के साथ डांस करती थी, उन्होंने अपनी बॉडी के सेल्स से बात करना शुरू किया, जो हम बोलते हैं ना टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ। अपनी किडनी से, लंग्स से, ब्रेन से, लिवर से उन्होंने खुद से बात करना शुरू किया, खुद की सेल्फ हीलिंग करना शुरू किया। बहुत सारी उन्होंने थेरेपीज भी अडॉप्ट की। शी स्टार्टेड टेकिंग सप्लीमेंट्स, शी स्टार्टेड सब नेचुरल हर्ब्स, मेडिटेशन, ग्रैंड किड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना। हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी वो कैली के साथ में। सो शी सेज, उन्होंने अपनी बुक भी लिखी है कि मेरे को ये सब चीजें करने में बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट होता था, कि जितना भी टाइम है मेरे पास में मैं बस इन्हीं के साथ में करूँ। सो धीरे 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 वो ठीक हो गई, और इट्स बीन नाउ 14 years। वो 14 साल से हमारे साथ में है, और वो बिल्कुल ठीक हो गई है, जहाँ पे उनके पास में सिर्फ 3 महीने का टाइम था। और अभी 2 साल पहले ही उनके हस्बैंड को ब्रेन कैंसर डिटेक्ट हुआ। एंड मैं उनसे अभी 2 साल पहले मिली थी, और अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे फ्यू मंथ्स बैक। सो बॉडी बहुत ही, सबकी बहुत यूनिक होती है, सबका बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस होता है इस डिजीज के साथ में। कुछ लोग किसी तरीके से ठीक हुए हैं, कुछ लोग इंटीग्रेटिव से, कुछ लोग सिर्फ मेडिकल से, कुछ लोग सिर्फ ऑल्टरनेटिव से। वी डोंट नो हमारा क्या होगा, हमारा क्या आउटकम रहेगा, बट हमें डेफिनेटली पता है कि हमारा क्या प्रोसेस हो सकता है। वो प्रोसेस हम डिफाइन करते हैं कि आज मुझे अपने कैंसर का जर्नी कैसे निकालना है, वो मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, मुझे किन चीजों से खुशी मिलती है, मुझे किन लोगों के साथ में अच्छा लगता है, मुझे क्या प्रैक्टिसेस अच्छी लगती है। हो सकता है किसी को मेडिटेशन नहीं अच्छा लगे, लेकिन उनको शायद चैंटिंग या कोई प्रेयर करना अच्छा लगे। हो सकता है किसी को एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगे, बट देन स्ट्रेचिंग और योगा करना अच्छा लगे। तो बट कुछ ना कुछ होना जरूरी है। जो 7 हीलिंग का जो पिलर होता है, ईटिंग वेल, मूविंग मोर, इमोशनल वेलनेस, क्रिएटिंग अ हीलिंग एनवायरनमेंट, स्प्रेडिंग लव, शेयरिंग विद कम्युनिटी, एंड मैनेजिंग स्ट्रेस, ये जो प्रैक्टिसेस होती है वो हमें किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करनी बहुत जरूरी है।
और ये ना ही सिर्फ कैंसर बट ये आपके मेरे हम सबके लिए ये अप्लाई करता है। सो डेफिनेटली अगर हम इन सब चीज़ों का शुरू से ध्यान रखें और एक पॉजिटिव होपफुल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, इन्वायरमेंट एक क्रिएट करें तो हमें भी अच्छा लगेगा कि ठीक है कैंसर आया है, एटलीस्ट हमें वार्निंग तो मिली है। काफी लोगों को तो वार्निंग भी नहीं मिलती है और उनकी सडन डिमाइस हो जाती है, राइट। सो हमें एक वार्निंग मिली है कि उमा जी दिस इज व्हाट इट इज, नाउ यू नीड टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ। वो चेंज कुछ भी हो सकता है, वो लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, वो आपका आउटलुक टुवर्ड्स रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका कि आप क्या अपनी खुद की हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो या फिर सिर्फ घर और ऑफिस के बीच में भाग रहे हो, वो भी हो सकता है। So it's time to change priorities in life is what the reminder that this cancer gives you. So जो भी अभी इस जर्नी से निकल रहे हैं, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद अपना देखिए कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आपने आज तक दूसरों के लिए सब कुछ किया है बट दिस इज टाइम टू फोकस ऑन योर हीलिंग योर हेल्थ, क्योंकि वार्निंग तो एक ही बार मिलती है, राइट। तो जो लोग उसका अगर उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं रखा, इस चीज का चेंजेस नहीं किए, प्रायोरिटीज नहीं चेंज की, तो शायद आउटकम भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं अच्छा होगा। और जब कैंसर रिलैप्स होता है तो हम सबको पता है कि कितना रिस्की होता है। सो लेट्स नॉट इवन गो देयर, और पहले से राइट चेंजेस करें, मेडिकल ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने बताया वो अच्छे से फॉलो करें। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको कौन सी हर्ब्स लेनी है, कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, कौन से आपके कैंसर के साथ में जाएंगे, कैसा डाइट फॉलो करना है, कैसा आपको इमोशनल वेलनेस में हम लोग इमोशनल वेलनेस को बहुत इग्नोर करते हैं जबकि कैंसर में यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग ऐसी चीजों की बात करते हैं जो हम खा सकते हैं, जो इंजेस्टिबल्स होते हैं, लेकिन उन चीजों की हम रेयरली बात करते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट वो हमारे बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा इनपुट होता है जो कि हमारी थॉट्स होती हैं कि हम किस तरीके की चीजें सोच रहे हैं, किस तरीके के लोगों के साथ में रहते हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस है, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं अभी भी दूसरों की इच्छाएं पूरी कर रही हूँ या फिर मैं खुद पे भी ध्यान दे रही हूँ, और क्या मैंने अपनी कंडीशन के साथ में पीस बनाया है। मतलब ये कि हाँ मुझे कैंसर है, मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है, और नहीं पता है तो मैं राइट पर्सन की हेल्प लूंगी जो मुझे गाइड करेगा इस जर्नी में, और मैं ये करूंगी अभी। आई प्रे टू गॉड कि मैं ठीक हो जाऊं एंड मैं अपनी बॉडी को अभी प्रायोरिटी दूंगी। सो दिस इज व्हाट इज लाइक मेकिंग पीस विद व्हाट यू हैव राइट नाउ। या फिर आप अभी भी वाई मी कर रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों हुआ और आई विल गो और मुझे नहीं जीना है या फिर जो भी होता है, राइट। वो भी थॉट्स आएंगी बट उसको इम्ब्रेस करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, एंड उसके बाद में हमें क्या करना है वो एक रोड मैप होना, वो प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है कि अब मेरा प्लान क्या करना है मुझे आगे। जो हो गया उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। कैंसर क्यों होता है उसका कोई डिफाइंड रीजन नहीं होता है, बट अगर हो गया है तो हमें क्या करना है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। उमा जी, आई टेक लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम योर जर्नी एंड जितनी सिंप्लिसिटी एंड जितनी सादगी से आपने अपनी जर्नी को, स्टोरी को शेयर किया है, आई एम श्योर लिविंग दिस एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट देन शेयरिंग हियर। एंड इतना जितना आराम से आपने बताया है, क्योंकि जस्ट डिटेक्ट होना इटसेल्फ कम्स एज अ शॉक कि मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, राइट। सो गोइंग थ्रू दिस इज अनदर एक्सपीरियंस एंड करेज ऑल टुगेदर। मैं जेनन को मैं भी हर पेशेंट को यही बोलती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग विल पावर रखिए, एंड काफी लोग ठीक हुए हैं। जब इतने लोग स्टेज 4 से भी ठीक हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। डोंट गो बाय कि मुझे 6 महीने बोला, 1 साल बोला, 2 साल बोला, क्योंकि मैंने तो बहुत पेशेंट्स को देखा है जिनको कभी तो 1-2 महीना या 6 महीने बोला था और आज वो बिल्कुल कैंसर से ठीक है। हमारे हाथ में है कि हमारा आउटकम क्या रहेगा, एंड एक काउंसलर की मदद से एक अच्छा हम प्रिपेयर करके कि हाँ ये सब चीजें मुझे 10 चीजें मुझे करनी है और मैं बस इसी में फोकस करूंगी, एक फोकस और डेडिकेटेड अप्रोच लेके हम डेफिनेटली इसको ठीक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। एंड हम लोग टाइम से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, बट या वी वुड लव टू हियर फ्रॉम अ फ्यू पीपल। दीपक जी आपने हाथ खड़ा किया है, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। यस दीपक जी। हेलो जी। नमस्ते सर। मैं दीपक हूँ मुंबई से।
सेम Okay. स्टोरी है। मेरी वाइफ ऐसे ही बोलती है, मैं कभी भी थोड़ा डाउन होता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ बोलती है नहीं, मेरे को ठीक होना ही है और मैं ठीक होके रहूंगी। Right. 2015 में उसको टाइम दे दिया था डॉक्टर ने, तब भी ठीक हो गई। अभी वापस से उसको रिलैप्स हुआ है, अभी भी वही बोलती कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी वापस से। Okay. स्टेज 4 है, तभी भी स्टेज 4 था, अभी भी स्टेज 4 है। अच्छा. Yeah. Yeah. Keep your willpower very strong. That is the main thing. Right. Thank Yes, you. sir. Thank you. Thank you, Deepak ji. Yes, Anuradha ji. Hi, Uma. Nice Hello. to see you. I'm so happy. आपकी जर्नी आज बहुत अच्छे से सुनी। वैसे तो मैंने पॉडकास्ट पे भी देख ली थी, बट नाइस टू हियर द स्टोरी। यहाँ पे डिम्पल इस प्लेटफॉर्म पे एक से एक इंस्पिरेशनल लोगों को लेके आती है, और इतनी अच्छी बात है कि वी ऑल गेट कनेक्टेड ना, इतना अच्छा एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है। So thank you, Dimple, and thank you, Uma, for the lovely session. Thank you. Thank you so much, अनुराधा जी। आपकी जर्नी, आपका जो काम है कैंसर पेशेंट्स के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। एंड हम सब बस अपना कुछ कंट्रीब्यूट करने का ट्राई कर रहे हैं। सो आई फील ब्लेस्ड। जैसे कि उमा जी ने बोला कि कैंसर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आया, वैसे आई ऑल्सो फील दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू do my part, and whatever I can do, like it completely transforms your life. Similarly, it has transformed all of our lives जो आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं, एंड एक दूसरे के साथ अपना लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच अनुराधा जी। गॉड का हर चीज के पीछे ना एक पर्पस होता है, डिम्पल। लाइक आई टोल्ड कि मेरे को कैंसर हुआ तो आई फेल्ट कि अच्छा अब जिंदगी बदल रही है। जैसे तुम्हारे साथ जो जर्नी में हुआ, तो तुम भी आज कितना बड़ा काम कर रही हो इन सब कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो दैट्स ऑसम। मतलब, और उमा जी का भी इतना अच्छा थॉट प्रोसेस है कि शी वांट्स की ओवरी वाले जो पेशेंट्स हैं, यंगर पेशेंट्स हैं, उनकी ओवरी वापस इम्प्लांट करके दे शुड गो फॉर मैरिज एंड किड्स लाइक। So that is also a very मतलब awesome idea. So let's cross our finger कि भगवान हमको शक्ति देता रहे, ऐसे ही और करते रहें और ये हो पाए सकते हैं। Thank you. थैंक यू अनुराधा जी। एंड ऑल्सो आई एम शेयरिंग जो ग्रुप है उसका लिंक भी, जेनॉन को ग्रुप का लिंक भी मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप सबसे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डिफरेंट ग्रुप से मैं एक ग्रुप का लिंक शेयर कर रही हूँ। सो आप काफ़ी सारे मेंबर्स से वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। मैंने चैट में शेयर किया है। यस तक्ष। यस, गुड इवनिंग मैम। Good गुड evening. इवनिंग। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हो गई और मेरी कीमो स्टार्ट हुई। 9 जुलाई को फर्स्ट कीमो थी, और कीमो पोर्ट भी उसी दिन हुआ है मेरा। तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे जैसे एक फियर था ना कीमो का, क्या साइड इफेक्ट होगा, तो वो जो आपने बोला था कि वही विजुलाइज करना है और वो सब माइंड में थॉट रखना है, तो कुछ मैं भी मेडिटेशन करती थी और वो कुछ आपका भी। तो मेरे को कीमो के मतलब बहुत ही माइनर साइड इफेक्ट हुए, मतलब जो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जस्ट मुझे 1 या 2 डे हल्की हल्की नींद ज्यादा आई, वो भी इतनी नहीं, जस्ट कि मुझे थोड़ा नींद फील होता था। खाती थी, रेस्ट करती थी, थोड़ा नींद लेती थी, बाकी थोड़ा सा कभी कभी हेडेक हल्का हल्का जो बेरेबल होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रही कि मुझे जो फियर था ना वो मेरा निकल गया फर्स्ट कीमो से, और उसके साथ साथ मेरा पोर्ट भी डला था, तो थोड़ा सा इफेक्ट उसका भी हुआ है। और अभी मेरी 30 जुलाई को मेरी सेकंड कीमो है, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं नॉर्मल हो गई हूँ। अभी तो काफी डेज बचे हुए, और मैं सबके लिए भी यही मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि जितना पॉजिटिव हैप्पी रहेंगे, रिलैक्स्ड वे में रहो। एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको लाइटली लो, और उससे ज्यादा वो नहीं हो, हाइपर नहीं होना। ये है दूसरा कि जो ब्रेन में ये थॉट आता है ना कि सेकंड टाइम भी आ जाता है, ये एक्चुअली क्या आता है, माइंड के थॉट से आता है काफी चीजें। फर्स्ट हमारा ट्रीटमेंट हो गया, वो चीज रिमूव हो गई, आई थी वो चली गई, इट्स ओके। लेकिन अगर बार बार हम उस थॉट में रहेंगे, कोई आके हमें ये कह दे नहीं ये रीग्रोथ हो जाता है, ये रीग्रोथ नहीं होता। हम थॉट जितना क्रिएट करेंगे बार बार, तो हमें 10% में रहना है कि मिरेकल हमें अपनी लाइफ में क्रिएट करना। अगर आप सेल्फ डिसाइड ये करते हैं कि मुझे उन 10% में मिरेकल देना अपनी लाइफ में,
कि मुझे रिग्रोथ नहीं करनी है अपनी लाइफ में ये दोबारा से, तो वही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो, मेडिटेशन करो, जो भी डाइट है, सप्लीमेंट्स हैं, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, तो आई एम श्योर कि ये आपको दोबारा नहीं होगा। और अगर 1% किसी को लगता है कि भाई हाँ है, तो वो इस थॉट को माइंड से हटा देंगे तो उनका ये डर भी निकल जाएगा। बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सबके लिए। Very, very important and very true. Very true. Because it's a mind game. ये जो बीमारी है ये it's a mind ये जो game. Medicines थॉट है काम उसको तभी करेंगे हटाना है तो अपनी आपकी लाइफ mind में। prepare मेरे होगी. Sorry, yeah. थैंक हाँ यू। जी, बस मेरा यही मैसेज है कि मैं ये चाहती हूँ दोबारा थॉट ना लाएं तो उनकी दोबारा आने के चांसेस 0 हैं। वो जो फियर है ना, जो हमारे से 10 लोग मिलते हैं, अरे मैंने सुना है दोबारा आ जाता, तो उस थॉट को निकाल दो। उनको बोलो नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कीमो के एक मैंने भी सुना हुआ था, पेनफुल है। मेरे को मतलब ये है थोड़ा सा हुआ, हल्का चेंजेस आए लेकिन बेरेबल, मतलब वो मैंने माइंड में प्लान कर रखे थे कि मेरे साथ सुप्रीम पावर है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ठीक हो गई, ये चीजें मेरे को अच्छा इफेक्ट डाल रही हैं और मेरी बॉडी में जाके बहुत बेनिफिट कर रही हैं। मेरी कैंसर हमेशा के लिए चलेगी, तो इसी थॉट में रही। इवन जो मुझे कोई हस्बैंड भी थोड़ा डाउन होते तो मैं यही बोलती कि मैं ठीक हूँ, मेरे लिए क्यों थॉट क्रिएट कर रहे हो कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ। इवन मैं कीमो के बाद भी नॉर्मल में चलती हूँ, काम करती हूँ, किचन में जाती हूँ। मेरे को ये नहीं है कि बस मैं डाइट पे ध्यान रखती हूँ, अपने टाइम टेबल पे, रेस्ट पे और अपने थॉट पे। थॉट सबसे इम्पोर्टेंट। आपको ये लाना ही नहीं कि हम बीमार हैं और हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है और ये मैसेज देना कि हमें दोबारा नहीं होगा और किसी को भी नहीं हो सकता अगर कोई ये थॉट रखता है। बस मेरा यही मैसेज था सभी के लिए। Yeah, thank you, Daksh. Thank you for sharing wonderful and beautiful message. आई एम पुष्पा नेहरा, मेरी डॉटर के नाम से आईडी है, तो आई एम जी, पुष्पा नेहरा। okay. हाँ Thank जी, you, Pushpa ji. हाँ जी, Thank you. वेलकम। Hi, Nisha. हेलो। Hello. कैसे हैं आप? बस मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया। Very good. So happy to hear this. कैसा चल रहा है आपका ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट बहुत चल रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी मुझे कैंसर हुए 6 महीने हुए और मैं मतलब है ना, जैसे कि कैंसर की मतलब डॉक्टर मैं बन गई हूँ। मैं मतलब है ना अपनी मतलब सच में डिम्पल से यकीन नहीं मानोगे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस पीरियड को एंजॉय कर रही हूँ। तो मतलब ऐसा जैसे कि अभी मतलब मैंने कभी किटी में जाना नहीं छोड़ा है, किटी को भी मैं एंजॉय करती हूँ। और वहां पे स्पेशली मतलब मैं ना 5 मिनट बोलने के लिए टाइम लेती हूँ मैं, कि 5 मिनट मुझे कुछ बोलना है इस बीमारी के बारे में, क्योंकि सारी मतलब किटी में सारी लेडीज हैं, तो लेडीज को इस चीज के लिए अवेयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा जब ये मतलब डायग्नोज हुआ ना, तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सिर्फ लेफ्ट साइड में, जिस साइड में मतलब ये सर्जरी हुई है, जिस साइड में प्रॉब्लम थी उस साइड के हाथ में थोड़ा सा दर्द आया था बस। तो मैं तो बस जनरली ऐसे डॉक्टर को दिखाने गई थी कि दर्द क्यों हो रहा है। अब डॉक्टर देखकर समझ गई हूँ, फिर उन्होंने मतलब सारा जब ये देखा कुछ, तो इसमें उन्होंने एक आध दो चेकअप जब बताए तो ये हुआ, तो पहले तो मतलब एकदम से शॉक्ड हो गई। और फिर जब ये पता चला तो नर्वस तो बहुत हुए थे, पूरा घर वाले सब मतलब बहुत परेशान हो गए थे। पर फिर जैसे जैसे ट्रीटमेंट शुरू होता गया, चलता गया, तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक मतलब कुछ लाइफ चेंजिंग मोड आया, मतलब ऐसे। तो मैं इस अपनी बीमारी को एंजॉय कर रही हूँ और काफी लोगों को मतलब अवेयर भी किया है इसके लिए। और मतलब टाइम अच्छा है और अच्छे से निकल जाएगा आगे का भी। That's wonderful, Nisha, and our all the best wishes and prayers to you. आप बिल्कुल ठीक, आप already ठीक ही हैं. So great. Thank 6 you. कीमो हो गए हैं, अभी 27 तारीख को 7वां कीमो है, तो उसके लिए भी अपन तैयार हैं बिल्कुल। Thank you. Yeah. ठीक है. So we are running over time. But we'll take last message from Jatin. Hi, Jatin. Hello, ma'am. Hi. Am I Please share. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, yes. We can hear you. You're audible.
Ma'am, I only want to speak one thing, that cancer cannot smash my life. Rather, it gave me a new life. Wow. That's beautiful, Jatin. Thank you for sharing this. And जैसा कि उमा जी ने बताया कि उनको भी एक नया लाइफ मिला है, so it's very apt what you shared today. So thank you. Great. Over to you, Uma ji, if you like to share any message for all the warriors who are going through this journey. हाँ, so as निशा जी ने बोला ना, मैं बहुत enjoy कर रही हूँ, तो आप भी कुछ enjoy करने का कुछ मतलब मौका ढूंढिए. मतलब definitely this time will pass. और मैं जस्टिना से लास्ट टाइम भी बोल रही थी कि ना, मेरे को हस्बैंड काफी बार मुझे पूछे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड विथ यू इन दिस जर्नी. तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि हाँ, मेरे को रोज अंडे खाने मिले और बेझिझक अंडे खाए मैंने. कोई रोक टोक, बिना रोक टोक के मैंने अंडे खाए. एक दिन भी, सोमवार हो, मंगलवार हो, शनिवार हो, कुछ भी वार हो, मैंने अंडे खाए हैं. तो आपको अपने खुशियां, मतलब यू हैव टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस, यू नो. ये कोई ऐसा कोई रूल बुक नहीं है. डॉक्टर को काम करने दीजिए, आप आपका काम करने दीजिए, और आप वही सोच रखिए कि मेरे को ये मैंने क्या होगा, मैं नहीं रहूंगी, मेरे बच्चे, ये वो सब सोचने का टाइम वक्त नहीं है. आपके हाथ में जो काम है, आप वो काम पे फोकस कीजिए और बाकी देखा जाएगा. मतलब सिर्फ कैंसर नहीं, बहुत से अलग से बहुत सारी बीमारियां हैं. और बहुत, मतलब मेरे ख्याल से यही है कि आपसे भी जो गए गुजरे केसेस हैं, आप जरा उन पे नजर रखिए, और अगर आपको स्ट्रेंथ लेनी है तो उनसे स्ट्रेंथ लीजिए. जैसे मैंने उन बच्चों को जब मैं देखती थी, रादर देन ओल्ड पेशेंट्स, मैंने हमेशा, मैं वो बच्चों का वार्ड में पहले जाती थी देखने के लिए कि आज कौन से बच्चे आए हैं. और किसी के साथ मेरी कभी कभार दोस्ती हो जाती थी, क्योंकि हमारा साइकिल एक होता था. तो जाके उनसे मिलते थे, वो लोग कौन से स्कूल में हैं, काफी सारी बातचीत मैं उनसे करती थी. तो फिर वो जो एक रैपो होता था, और उनसे एक्चुअली मैंने अपनी, अगर मेरी कुछ स्ट्रेंथ है तो मैंने उनसे ली और मेरी बच्ची से ली. तो मेरा यही मानना है कि आप अपना स्पॉट ऑफ हैप्पीनेस ढूंढिए इस पूरी जर्नी से, क्योंकि ये वक्त भी निकल जाएगा डेफिनेट. जैसे अच्छे वक्त का भी एंड होता है, बुरा वक्त का भी एंड होता है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. अच्छा बुरा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ टाइम. तो वो टाइम जैसा भी हो, आपको वो एक्सेप्ट करना है और उसको लेके चलना है. हाँ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अवेयर रहिए, कॉशियस रहिए. कुछ चीजों का जो आपको नहीं करना है वो मत कीजिए. जैसे कीमो में डॉक्टर्स बोलते हैं कि बाहर का खाना, या फिर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको मानिए डेफिनेटली. और लाइफ को जैसा आपका पहला भी चल रहा था उसको ही, इट्स जस्ट अ कंटिन्यूएशन. कैंसर के लिए आपको कुछ ऐसा ब्रेक नहीं होगा. तो आप उसी लाइफ को ही कंटिन्यू कीजिए, और उसके साथ शायद 2 3 4 और काम आपको खुद के लिए करना हो. बट इट्स नाइस कि आप अभी खुद के लिए कुछ करेंगी. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Thank you, Uma ji. And there are a few questions on diet. Pushpa say, and one more, Geeta say. They say be normal and take food that you enjoy. Any restrictions? And second question is, can you suggest ways to increase taste and appetite? I have distaste of food, don't feel like eating anything. Very valid question. So मैं आपको I will do one thing. क्योंकि restrictions and many other things depends on कि आपका क्या, कौन सा कैंसर है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, और क्या आपको कोमॉर्बिडिटीज भी हैं. सो मैंने आपको एक नंबर यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, सो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं. एंड आपको मैंने ग्रुप का लिंक भी दिया है, सब ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. हम लोग वहाँ पे काफ़ी सारी डाइट रिलेटेड टिप्स डेली शेयर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए. सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड फॉलो दोज टिप्स. जो ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट है उन्होंने वो टिप्स बनाई हैं और वो शेयर करते हैं वहाँ पे. एंड आप उन ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे. तो दे विल गाइड यू कि आपको क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो है वो फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि कैंसर में काफ़ी स्पेशलाइज्ड डाइट होती है. नॉर्मल, जैसे कि उमा जी ने बताया कि डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस करना इंपॉर्टेंट होता है.
तो काफ़ी सारी हमें एडवाइसेस मिलती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च बेस्ड होता है कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से हमें करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको यहाँ पे गाइड करेंगी। एंड राइट, तो जैसे पुष्पा जी आपने बताया कि आप कैंसर सर्वाइवर है 2015 से, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप भी उसको अच्छे से फॉलो करें ताकि टचवुड बट रिकरेंस भी नहीं हो एंड यू आर एबल टू लिव अ हेल्दी बेटर लाइफस्टाइल। तो आपको उसके बाद में अभी तक अगर उसके इफेक्ट्स हो रहे हैं कि आपको डिस्टेस्ट हो रहा है और एपेटाइट का इशू है, तो डेफिनेटली यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। सो डू मैसेज एंड इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। सो आई विल शेयर सम टिप्स विद यू जो आपको एपेटाइट लॉस के लिए और डिस्टेस्ट में हेल्प करेंगे। एंड या बट आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट वन थिंग टू एवरीबडी, जैसे कि पुष्पा जी आपने बताया कि आप 2015 से कैंसर सर्वाइवर हैं। सो मेरी एक बहुत ही क्लोज आंट है जो कि ब्रेस्ट कैंसर उनको हुआ था आज से 8 साल पहले। सो हमें लगा कि 5 साल खत्म हो गया है और सब कुछ ठीक हो गया है। शी स्टॉप डूइंग स्कैन्स वगैरह सब कुछ ही, बट अभी उनका 1 महीना पहले फिर से रिकरेंस हुआ है। सो लिम्फ नोड्स में और पेल्विक बोन वगैरह में है। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ बहुत पहले हुआ था कैंसर, बट ज़रूरी नहीं है कि 2 साल या 5 साल ही होता है कि वापस आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। सो हमें हमेशा ही कॉशियस रहना होता है, विजिलेंट रहना होता है कि हमें भी दोबारा कभी भी आ सकता है। तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल और बेस्ट प्रैक्टिसेस हमेशा फॉलो करनी चाहिए। मेरी आंट जयपुर से हैं जिनको अभी रिलैप्स हुआ है ब्रेस्ट कैंसर का। सो आफ्टर 8 years हु थॉट कि 8 साल बाद में भी वापस कैंसर आ सकता है। सो एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग भी कंटिन्यू स्कैन करवाइए, अपने टेस्ट करवाइए, ताकि उनको एक्चुअली थ्रोट का इशू हुआ था, उनका वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो गया था, इसके लिए वो रेगुलर डॉक्टर से मिल रही थी। और उस मीटिंग में उन्हें पता चला कि वो भी 4-5 डॉक्टर से मिलने के बाद में पता चला कि हाँ एक स्कैन करवा लो, क्योंकि वो यूएस जाने वाली थी। और वो बाय चांस रैंडम स्कैन में पता चला कि उनको ऑलरेडी स्टेज 4 है। तो बॉडी है अलग अलग तरीके से सिम्टम्स दिखाती है और नहीं भी दिखाती हैं, बट हमें क्योंकि एक बार वार्निंग मिली है कैंसर हुआ है, बहुत ही कॉशियस और विजिलेंट रहना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर रेगुलर चेकअप्स एंड गुड लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। सो ये जो नंबर है पुष्पा जी 9372976783 आप मैसेज कर दीजिए एंड मैं आपको फिर उनसे कनेक्ट भी करवा लूंगी, ठीक है? थैंक यू। And thank you everybody for joining in today's Healing Circle Talks, and especially Uma ji for sharing your inspiring story. आपके जरिए हम इतने सारे लोगों से मिले और सबको एक दूसरे से सीखने को मिला. So it's really an honor, as I said, for us to host this and bring like-minded people together who are there for a common cause. And इसका रिकॉर्डिंग जो है वो YouTube पे भी अवेलेबल होगा, हम लोग ग्रुप्स में भी शेयर करते हैं. सो YouTube ऑफ लविल्स कैंसर, उसका मैंने लिंक चैट में शेयर भी किया है. सो आपको उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा इस सर्कल का. Thank you so much everybody, and we look forward to meeting you in next healing circle. Yeah, thank you, bye bye, take care everyone.